ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਭਗਤ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀਕਾਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਭਗਤ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣਿਕ ਨੇ, ਪੁਰਾਣ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਬਾਣੀਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ, ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪੁਰਾਣਿਕ ਭਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਗਤ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿਤਨਾ ਮਰਜੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਦੇਖੋ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਉਮਰ ਢਲਦੀ ਏ, ਸੱਚੀ ਇਹ ਵੇ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਨਿਮਰਤਾ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਿਲ ਮਾਤਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟੀਕਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮਰਥ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਸਾਖੀ ਸੁਣਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਰੋ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਕੋਈ ਕਰੰਟ ਮਸਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬੋਲ ਪਾਂਗਾ, ਪਰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਿਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਉੱਚੇ ਸਿਖਰ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਕੇਵਲ ਬਾਰਮੁਖੀ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਿਓ, ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨੀ ਇਹ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜੀਣਾ ਇਹ ਕੇਵਲ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਮੂੰਹ ਲਾਲਨ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਬਣੀ, ਤੋਰੀ ਨਾ ਟੂਟੈ, ਛੋਰੀ ਨਾ ਛੂਟੈ, ਐਸੀ ਮਾਧੋ ਖਿੰਚ ਤਨ, ਦੋਸ਼ ਤੁਕਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਂਗਾ, ਪਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਬਖਸ਼। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਪਿਆਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਲਾਲਨ ਸਿਓ ਪ੍ਰੀਤ ਬਣੀ, ਤੋਰੀ ਨਾ ਟੁੱਟੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਇਸ ਬਣੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਛੋਰੀ ਨਾ ਛੂਟੈ, ਤੇ ਜੇ ਚਾਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਆਂ, ਨਾ ਇਹ ਟੁੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਇਹ ਛੁੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਐਸੀ ਮਾਧੋ ਖਿੰਚ ਤਣੀ। ਇਹ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਥਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਖਿੰਚ ਤਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਨੇ। ਖਿੱਚ ਦਾ ਤੇ ਅਰਥ ਹੋ ਗਿਆ ਸਿੱਧਾ, ਤੇ ਤਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਿਹਾਤ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਖਿੱਚ ਲੈਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਤਣ ਦੇਣਾ, ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਆਪ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕਦੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏ, ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ, ਇਸ ਸੜਕ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਗੰਨਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਟਰਾਲੀ ਜਾਂ ਟਰੱਕ ਜਾਏ, ਈਵਨ ਕਿ ਟਰੱਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਿੰਚ ਤਣੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਮਾਨ ਲੋਡ ਕਰਨੇ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਰੱਸੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਖਿੱਚ ਕੇ ਤਣਾ ਦੇ ਕੇ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਸ ਰੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਂਗਲ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਥੱਲਿਓਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇੱਕ ਖਿੱਚਣਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤਣ ਦੇਣਾ। ਬੜੀ ਸਾਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਟੁੱਟੇਗੀ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਛੁੱਟੇਗੀ ਕਿਵੇਂ? ਜਿਵੇਂ ਰੱਸੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਤਣਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਉਹ ਟੁੱਟਦਾ ਤੇ ਨਾ ਢਿੱਲਾ ਪੈਂਦਾ, ਨਾ ਉਹ ਛੁੱਟਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਆਪ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਗਈ, ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਤੋੜ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਛੁਡਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਉਦਾਹਰਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਮੂੰਹ ਲਾਲਨ ਸਿਓ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੋਲ ਦੇਣਾ ਤੇ ਕਮਾ ਲੈਣਾ, ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਵੇ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਉ ਜਿਨ ਘਟੈ। ਮੇਰੀ ਮੁਹੱਬਤ, ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਘਟ ਨਾ ਜਾਏ। ਕਿਉਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਤੋਂ ਮੋਲ ਮਹਿਗੀ ਲਈ ਜੀ ਸਟੈ। ਜੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿੰਦ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪ੍ਰੀਤ ਖਰੀਦੀਏ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਕਥਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅਰਥ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ,
कि जी सटै जिंद बदले लई, पर मेरा ये तजर्बा थोड़ा कि मैं अपनी जिंद दिती होवे। फिर अर्ज सुनियो सतगुरां ने, मैं फिर बेनती कर रहा, कुछ भगत वो ने जिहड़े बाणीकार बिल्कुल नहीं, ते मैनूं इस गल कहण च कोई गुरेज नहीं। देखो गुरु ग्रंथ साहिब साडा इष्ट है, जे मैं व्याख्या गलत करांगा कल मैं भी देनदार हाँ। पूरे गुरु ग्रंथ साहिब विच पच्छम दे किसी भी भगत का जिक्र तक नहीं किया गया। इवन कि हजरत मुहम्मद साहब का नाम नहीं है गुरु ग्रंथ साहिब च। गुरु ग्रंथ साहिब च जिन्ने भगत ने तकरीबन वो पूर्व नाल संबंधित ने, खास करके पुराण नाल संबंधित ने। हुण जिवें हुण भाई साहब पढ़ के गए, बाबा जी भी कथा करके गए, राम जपो जी ऐसे ऐसे ध्रुव प्रहलाद जप्यो हर जैसे। दोनों की परिवार की प्रॉब्लम है, क्योंकि बंदा परिवार के मोह नूं छड्डना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये फिर सुनो गुरमुख, राम तो बाकी भी कह रहे सन, पर इत्थे इन्हां दी क्यों उदाहरण कल्ले बच्चों करके नहीं। सच ये वे कि ये दोनों बच्चे जिहड़े ने अपने परिवार वालों ही पीड़ित किए गए, कल्ले पीड़ित नहीं। एक उत्ते तां परिवार वालों रज के तशद्दुद किया गया। मां दा ममता, प्यो दा लाठ। गुरु ग्रंथ साहिब च भगत ध्रुव जी की उम्र भी लिखी है। 5 बरख को अनाथ ध्रुव बारकार सिमरत अमर अटारे। गुरु ग्रंथ साहिब च उन्हां दी उम्र दसी है 5 साल का बच्चा। इत्थे लफ्ज अनाथ वरत्या, हालांकि उहदा मां बाप भी है, उहदा बाप राजा उतानपाद है, मां सुरीची सुनीति नाल एक समतरई मां, एक सक्की मां है। पर गुरु ग्रंथ साहिब च भाई ये लिखिया अनाथ, क्योंकि वह कहता भावें मेरे माँ बाप जिउंदे ने, भगत उदों ही सनात हुंदा जदों दी रब दे नाल बन जांदी है। महाराज ने शब्द वरत्या, राम जपो जी ऐसे ऐसे ध्रुव प्रहलाद जप्यो हर जैसे। सिर्फ थोड़ी जी मैं साखी बेनती करनी है, गुरबाणी चो बाहर निकल के नहीं, क्योंकि गुरु साहिब जी ने, गुरु तेग बहादुर साहिब ने शब्द वरत्या, अटल भयो ध्रुव जाकै सिमरन अर निरपै पद पाया, दुख हरता ए बिद को स्वामी तय काहे बिसराया। उत्थे महाराज ने ध्रुव की उदाहरण ली है। आप सब नूं पता है, ज्यादा डिटेल च नहीं, कि ध्रुव नूं भाई गुरदास साहिब जी के मुताबिक ओदी मतरई मां ने राजे उतानपाद की गोद चों बाहर कढ दिता। उहदे पिता का नाम राजा उतानपाद सी। जदों उहनूं बाहर कढिया, ये पौड़ी भावें आप सारे जानते, वो सीधा अपनी मां दे कोल गया। उन्हें पहला सवाल ये कीता सी कि मैनू ये दस मां, इस घर विच तेरा रुतबा की है? तू राणी है कि दासी है? जे गोली है तां मैनू दस, ते जे राणी है तां। उन्हें कहा पुत्र तेनू होया की? कहंदा मेरे एक सवाल का उत्तर दे भी तुसी इस घर च तुहाडा रुतबा दासी वाला है कि राणी वाला है? उन्हें कहा पुत्र मेरा रुतबा राणी वाला है। उहदा दूजा सवाल सी कि जिस तखत ते मेरा बाप है, ये राज भाग मैनू किवें मिल सकदा है? मैं इत्थे एक बेनती कर लगा। पहला बिल्कुल ध्रुव दा क्वेश्चन ये नहीं कि मैनू रब किवें मिल सकदा है। तुसीं गुरमत दा सह देखो, बिल्कुल नहीं उन्हें कहा परमात्मा किवें मिलेगा, नाम किवें जपीए। उहदा पहला उन्होंने वजी सी 60। उन्हें कहा मां तू राणी के गोली? दूसरा मैनू दस कि मैनू राज किवें मिलेगा। याद रखियो मां बड़ी सियाणी सी। उहदा तीजा सवाल से, 3 सवाल सन उहदे, राणी है कि गोली है, राज किवें मिलेगा, ते तीजी गल ध्रुव जी ने पूछी सी कि मां मेरी जेड़े मेरे नाल नफरत करदे ने ये मैनू प्यार किवें करनगे। उन्हें बिल्कुल नहीं सवाल किया जेड़े नफरत करदे ने खत्म कदों होणगे। ये मेरे जेड़े दुश्मन बने ने ये मित्र बन सकदे आ? मां बड़ी सियाणी सी प्यारिओ, जे किते ओदा अंदर ईरखा दी अग सड़दा, उन्हें कहना सी तू बाप दा मुकाबला कर। उन्हें अपने आप ते लै लिया, कहन लगी पुत मेरेआ असल च कसूर तेरा कोई नहीं, जदों तू मेरे उधर विसे मैं रब दी भगती नहीं कीती, जे मैं भगती कीती हुंदी तैनूं कदी अज ठोकरां ना पैंदियां। दूजी गल, तू ये राह चाहना है कि अटल राह चाहना है? कहन लगी तेरे बाप दा राज कोई समय बाद चला जाएगा। कहंदा अटल राज? कहंदी फिर एक काम कर, रब दी बंदगी कर, जिदन परमात्मा दी इबादत पहुंच गया करोड़ां राज तेरे चरनां विच रुल। मेरी तां बेनती भी नहीं कह दिता राम जपो जी ऐसे ऐसे ध्रुव,
बेनती बाप है, प्यो नाल मोह तोड़ना बड़ा मुश्किल हुंदा है, घर छड्डना बड़ा मुश्किल हुंदा है। भाई गुरदास साहब ने कहा, ध्रुव हसदा कर आया, कर प्यार भो कुछड़ दिता, बाहों पकड़ उठा लिया, मन विच रोस मतरई कीता, डड्डो लिका मां पुछे तू सा वाणी कह के सुरीता। कहन लगी सा वाणी का जन्म दी, नाम ना कर्म नाम ना भगती कर्म दृढ़ीता। कहंदा मां किस उद्यम ते राज मिले, छत्रु ते सब होवन मीता। वेखो दा सवाल कि ना द्वैस नहीं हो, किस उद्यम ते राज मिले, छत्रु ते सब होवन मीता। अगों मां कहंदी परमेश्वर आराधिया जिद्दू होई है पतत पुनीता। बाहर चलिया करन तप, मन बैरागी होए अतीता। नारद मुन उपदेशिया, नाम निधान अम्यो रस पीता। हार चले गुरमुख जग जीता। ते भाई साहब दी पूरी पौड़ी, वैसे मेरे मन से मैं होले महल्ले बारे बोलांगा, पर वो शब्द चल रहा सी ना, बाबा जी भी कथा कर रहे सन। इत्थे हार चले गुरमुख जग जीता दा अर्थ की है? इहदे भी अर्थ थोड़े ध्यान नाल सुनियो। हार जाना ते जित जाना, ये फिर तुक सुनो। हार चले गुरमुख जग जीता। कई बारी संसारी तौर ते सच्चा बंदा हारदा दिसदा है, पर समा बीतन दे नाल ओदी जित जुगो जुग अटल हो जाती है। गुरमुखो ध्यान दिया जी, जदों ध्रुव ने अपना घर छड्डिया कि मतरई मां दे मन च खुशी नहीं अज मैं कढ़ दिता। आप जी नूं शायद पता होवे, ध्रुव दे जिहड़ा सुतेला भरा सी ओहदा नाम की सी? पता है जी? नहीं पता ना। ओहदा नाम उत्तम सी। हुण याद रखियो, उत्तम गद्दी ते बिठाना चाहती है। अज उत्तम दा नाम संगत विच बहुत घट बंदियां नूं पता है, पर ध्रुव दे नाम नूं सारा संसार जानदा। उस वक्त उत्तम जित रहा है, ध्रुव हार रहा है, पर याद रखियो वह हारिया होया अज जित्या होया है, ते जिहड़े जुत दा जशन मनांदा सी अज वह हारिया होया। मेरी बेनती है, ध्रुव ने सच्ची मुच्ची मां की सिक्ख्या लई, पर जिहड़ी दूजी साखी है वह बिल्कुल डिफरेंट है। वो सच्ची मुच्ची ध्रुव तो बिल्कुल विपरीत कह लो। मैं हुण दोवां थावां ते मावां ने। मैं तां ये गुरमुख शुरू किया, वैसे अक्सर ही शब्द गुरु के कीर्तनीय सुनाते हैं। ध्रुव दा बाप वो जुल्म नहीं कर रहा, पर वो वासना दे अधीन होया। उस दूसरी राणी दा सच्ची मुच्ची ओदे सामने बोल नहीं सकता, पर ओदी सक्की मां ओदे नाल खलोती, पुत्र बंदगी कर। प्रहलाद दी साखी बिल्कुल वखरी है। उत्थे मां भी जान दी दुश्मन बनी है ते बाप भी जान दा दुश्मन बनिया है। ये दोनों की व्याख्या गुरु ग्रंथ साहिब च। मैं आप जी नूं तां पहला इशारा किया क्योंकि अज जदों ध्रुव दा, द्रौपदी जी दा जां बाकी कोई प्रमाण हुंदा है ना, अक्सर सिखां दे दिमाग च पा दिता गया ये अनमत दियां कहानियां। गुरमुखो वेखो, गुरु ग्रंथ साहिब नूं मत्था टेकने ना, साडे च ताकत है गुरु तो उच्ची सुर दी। तुसीं एक शब्द पढ़ो सोठ राग दा, मन रे प्रभ की सरन विचारो, जे सिमरत गनका सी उदरी ताको जस उरतारो। अटल भयो त्रु जाकै सिमरन अर निरपै पद पाया, दुख हरता बिद को स्वामी तय काहे बिसराया। जब ही शरण गई कृपा निध गज गराह ते छूटा, महिमा नाम कहा लो बरनु राम कहत बंधन ते टूटा। अजामल पापी जग जानै निमख माए निस्तारा, नानक कहत चेत चिंता मन तै भी उतरे भारा। जिन्ने प्रमाण ने सारे पुराणक ने जी। फिर अर्ज है कि उत्थे प्रहलाद की कहानी होर है, ते जेड़े अज दिन चल रहे हैं सच्ची मुच्ची घटना भी इन्हां दिनां च वापरी है। प्रहलाद बाप ने तप किया शिव जी का, ते वार यही लिया कि मैं अंदर ना बाहर ना दे, सारे तुसीं जानदे हो। सीधी गल, उन्हें जो कुछ अपना कर सकता सी ना, अपनी डिफेंस च उन्हें कहा मैं मरा ना। पर याद रखियो, उन्हें ये नहीं केवल क्या मरा ना, उन्हें जुगतां लभियां मैं ना मरा। उन्हें क्या अंदर बाहर उत्ते थले बंदा ना मनुख, पर वो जे कह दिंदा मैं कदी ना मरा, शायद कोई हाल निकल आउंदा। उन्हें क्या मैं इस तरह भी ना मरा, इस तरह भी ना मरा। पर आप सब नूं पता है, जदों वो बंदे कोल ताकत आ गई, वर मिल गया। बहुत घट बंदे ने गुरमुखो जेड़े ताकत लैके भी ग्राउंड धरती नाल जुड़े रहिंदे आ। अक्सर बंदे कुल आ जाए, जब कछ पावत तब गर्व करता है, माया गई तब रोवन लगता है। उसने पहला फरमान किया,
कि सिर्फ मेरे राज च मेरा नाम जपिया जाए, मेरा सिमरन होवे। परमात्मा ने ऐसी खेड वरताई, ਉਹਦੇ ਘਰ ਹੀ परमात्मा ने पुत्र पैदा कर दिता। किसी दूजे ने बागी की होना सी, पुत्र ने बागी होके कह दिता कि जले खरनाक्ष थले हरनाक्ष नहीं, इत्थे जले खरी थले खरी है। गुरमुखों नूं जो तसीहे दिते, मैं कोई साखी नहीं सुना रहा, जो गुरबाणी च लिखिया वो अर्ज कर रहा। उत्थे फिर इस दी मां ने बड़ा समझाया, सारे सुनांदे ने प्रचारक, ਇਹਦੇ दो उस्ताद सन, संधा ते अमरख। इन्हां ने समझाया, ना मां दी मन्नी ना उस्तादां दी मन्नी, इत्थों तक कि उन्हें मां नूं भी कह दिता कि जे मैं परमात्मा दा नाम छड्ड दिता ते मेरी कुल नूं गाल लगे। ते गुरमुखों दी कुल तां राखश है, कुल नूं गाल किवें लग गई? ये भी एक बड़ा विषय है कि कई बार कहना फलाने की कुल विचों फलाने गुरु साहब होई आ। मेरी बेनती, स्पिरिचुअलिटी विच कुल दे अर्थ कुछ होर ने। गुरु ग्रंथ साहिब विच प्रहलाद कहंदे ने मेरी कुल नूं दाग लग जाएगा। अगला पूछे भी तेरा तां बाप हरनाक्ष, उहनूं दाग की लगना? नहीं प्यारिओ, इबादत वालियां दी कुल केवल खून दा रिश्ता नहीं हुंदा, उहनां दी कुल केवल बंदगी वालियां नाल हुंदी। मैं एक बार अर्ज कीती सी, जिहड़े आप जी बाणी पढ़दे हो, रामकली की वार, राय बलवंड तथा सत्ता डूमाखी, 8 पौड़ियां ने। उंज वैसे चाहिए अमृत वेले इस वार का पाठ जरूर करो नेम नाल। मैं आप जी फिर कहांगा, मन च आवेगा जी रहत मर्यादा च कित्थे लिखिया है? रहत मर्यादा च लिखिया है इन्नियां घट्टो घट करो, इदू बाद भावें सारा दिन बाणी पढ़ते रहो, रोक नहीं सकते। थोड़ा जिहा बेनती सुनियो। ओदियां 8 पौड़ियां ने वार दियां, 5 पौड़ियां बलवंड जी दियां ने, अखीर वालियां 3 पौड़ियां सत्ते दियां ने। उस विच एक तोक आउंदी है, सो टिक्का सो बहना सोई दीवान, प्यू दादे जे विहा पोता परवान। पहला पोता हुंदा है, अखीर ते पोतरा हुंदा है। फिर सुनियो, प्यू दादे जे विहा पोतरा परवान, खीर ते हुण सो टिक्का। टिक्का दे लफ्ज़ ये अर्थ है मत्थे दा नूर। मैं टिक्का दा दूजा नहीं कर रहा, दूजा कोई चंदन दा। टिक्का मत्थे दा नूर। बहना, बहना दा अर्थ होंदा जिस तख्त ते बैठा जांदा है। सोई दीवान, दीवान दा अर्थ है दरबार। कहंदे टिक्का भी ओख है, दरबार भी ओख है, ते तख्त भी ओख। केड़ा? प्यू दादे जे विहा। ਇਹਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਿਓ ਦਾ ਅਰਥ ਪਿਤਾ, ਦਾਦੇ ਦਾ ਅਰਥ ਸਾਨੇ ਬਾਬਾ। ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਜੇ ਵਿਆਹ ਪੋਤਾ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਕਿਸੇ ਟੀਕਾਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੜੋ, ਈਵਨ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਟੀਕਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਉਹ ਪਿਓ ਦਾ ਅਰਥ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਦਾਦੇ ਦਾ ਅਰਥ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਪੋਤੇ ਦਾ ਅਰਥ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾਦੇ ਨੇ, प्यो गुरु अंगद देव जी ने, ते पोतरा गुरु अमरदास है। गुरमुखो थोड़ा जिहा आप जी ध्यान टिकायो, खंडा ना बनायो फुरनिया करके भी। मैं 5-7 मिनट भाई साहब आ गया, मैं समाप्ति कर देना। हुण एक मेरी बेनती है, गुरु अंगद साहब गुरु अमरदास तो 25 साल छोटे ने। फिर अरे सुनियो, 25 साल छोटे ने गुरु अंगद देव गुरु अमरदास नालों। गुरु अमरदास सिर्फ 10 साल छोटे ने गुरु नानक साहब नालों दुनियावी तौर ते। अज तक दुनिया च खलो के कोई बंदा जिस दा जन्म 25 साल बाद होया होवे, ये कह सकता है तेरा प्यो है। सो टिक्का सो बहना सोई दीवान, प्यू दादे जे विहा पोता परवान। एक सवाल उठेगा, जिवें असीं तर्क नाल गल कर रहे हैं, फिर तर्क तां कह रहा है कि गुरु अंगद साहिब महाराज उन्हां दा जन्म 1504 नूं होया है, ते धन गुरु अमरदास महाराज जी दा आगमन जिहड़ा है वो 1479 नूं होया है, 79। ਇਹਦਾ मतलब तुसीं गिन के देख लो, 25 साल हो गए। मेरी फिर अर्ज है, 25 साल जिहड़ा छोटा है उन्होंने गुरबाणी प्यो कह रही है।
25 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਮੰਨ ਲੈ। ਉਂਝ ਭਾਵੇਂ ਉਮਰ ਕਰਕੇ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਰਥ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸੁਣੋ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚਣਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਨੇ? ਬੇਦੀ ਨੇ ਨਾ। 3 ਬੇਦੀਆਂ ਕੀ ਕੁਲ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਗਟੇ ਨਾਨਕ ਰਾਏ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਕਿੱਥੇ ਬੇਦੀ ਨੇ ਜੀ? ਉਹ ਤਾਂ ਤੇਹਨ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨਾ ਬੇਦੀ ਨੇ ਨਾ ਤੇਹਨ ਨੇ, ਉਹ ਭੱਲੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ? ਸੋ ਟਿੱਕਾ ਸੋ ਬਹਿਣਾ ਸੋਈ ਦੀਵਾਨ, ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਜੇ ਵਿਆਹ ਪੋਤਾ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਬਰੀਕ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਭਗਤ ਪਦਵੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਸੱਟਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਅਰਥ ਕਰੀ ਜਾਏ, ਭਗਤ ਦੀ ਪਦਵੀ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਭਗਤ ਕਿਹਾ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਭਗਤ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ ਚ ਵਰਤਿਆ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੰਮਿਆ ਪੂਤ ਭਗਤ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ। ਭਗਤ ਇਬਾਦਤ ਚ ਭੇਦ ਹੈ, ਪਰ ਭਗਤ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਤੋਰ ਰਿਹਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਨੂੰ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਇਆ ਪਲਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਾ ਸੁਗਿਰਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੇਡਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ, ਨਹੀਂ ਵੈਗੁਰੂ ਮੈਂ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਪਾਂਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਤਸੀਹੇ ਸੱਕੇ ਬਾਪ ਨੇ ਦਿੱਤੇ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਿੰਨਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਫੇਥ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਭਗਤ ਦਾ ਫੇਥ ਹੈ ਜੀ। ਬੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਹਰੋਂ ਵਿਰੋਧ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਿਓ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏ, ਮਾਂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮਾਂ ਬਾਪ ਤਰਵਾਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ, ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮੇਰੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੇ ਤੁਰ ਪਾ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ? ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਧਰੂ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜਪਿਓ ਹਰ ਜੈਸੇ, ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੇਰਾ ਬਾਪ ਵੀ ਤੇਰਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋ ਜਾਏ ਇਬਾਦਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਤੇਰੀ ਮਾਂ, ਤੇਰਾ ਬਾਪ, ਤੇਰਾ ਰਾਜ, ਤੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਣ, ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਖਰ ਤਸੀਹੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜਰ ਜਾਈ। ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਖਰ ਤਸੀਹੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਬੜੇ ਨੇ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ। ਉਂਝ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤੋ ਪਾਇਆ, ਪੈਜ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ, ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਖਰਨਾਕਸ਼ ਦੁਸ਼ਟ ਹਰ ਮਾਰਿਆ, ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਤਰਾਇਆ। ਇਹ ਸਤਜੁਗ ਦਾ ਭਗਤ ਹੈ। ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਅਹੰਕਾਰੀਆਂ ਨਿੰਦਕਾਂ ਪਿੱਠ ਦੇ ਨਾਮ ਦਿਓ ਮੁਖ ਲਾਇਆ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੀ, ਸੰਡਾ ਮਰਕਾ ਜਾਏ ਪੁਕਾਰੇ, ਪੜੇ ਨਹੀਂ ਖਮਗੀ ਪਚਹਾਰੇ, ਰਾਮ ਕਹੇ ਕਰਤਾਲ ਬਜਾਵੇ, ਚਟਿਆ ਸਭੈ ਬਿਗਾਰੇ। ਇਹ ਸੰਡਾ ਮਰਕ ਉਸਤਾਦ ਨੇ। ਐਸੇ ਜਪੋ ਜੀ ਐਸੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜੀ ਸ਼ਾਤਰ ਤੇ ਚਲਾਕ ਬੰਦੇ ਤਰਕ ਦੇ ਦੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹਣ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਤੇਰੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਦਵਾਨ ਵੀ ਨਾ ਤੋੜ ਸਕੇ, ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਤੈਨੂੰ ਤੋੜ ਨਾ ਸਕੇ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸੰਡਾ ਮਰਕਾ ਜਾਏ ਪੁਕਾਰੇ, ਪਈ ਪੜੇ ਨਹੀਂ ਖਮਗੀ ਪਚਹਾਰੇ, ਰਾਮ ਕਹੇ ਕਰਤਾਲ ਬਜਾਵੇ, ਚਟਿਆ ਸਭੈ ਬਿਗਾਰੇ। राम नाम जपो करे, खिरदै खरजी को सिमरन करे, बसदा बस कीनी सब राजे, बिनती करे पटरानी। मां भी पुठे पासे चलांदी कि मेरे पुत्र तू छड़ राम नाम, बिनती करे पटरानी। पूत प्रहलाद कहा नहीं मानै, तिन तो औरे ठानी। इस तरह नाम जप जिवें प्रहलाद दी दृढ़ता है। मैं थोड़ी जी उन्हां शब्दां नूं खोल दिता जिन्नी कोई समझ सी। महाराज सच्चे पातशाह कहंदे ने, तिन तो औरे ठानी। अगे दुष्ट सभा मिल मंत्र पकाया, दुष्टां दी सभा इकट्ठी होई, जिहदे विच प्यो भी सी, मां भी सी। दुष्ट सभा मिल मंत्र पकाया, करसै औद कनेरी, गेर तार जल ज्वाला भै राखियो। हुण इस तो परसों चौथ होली मेरा आ जानी है ना जी, संबंधित तां उहदे नाल ही है ना। पर बजाए कि उस दी गल नूं सिखण दे, क्योंकि ये भी पुराने घटनावां ने। गेर पहाड़ तो सट्टिया उहनूं झरीट नहीं आई, गुरमुखों नूं रुख तो सट्टिया झरीट नहीं आई, उहनूं पानी सट्टिया नहीं डुबिया। अखीर ते उहनूं अग च जदों बिठाया, होलका चादर लैके बैठी, प्रहलाद बच गया, होलका सड़ गई। अखीर ते बां फिर गुस्से च आया, उन्हें तलवार वढ कढ के कहा, दस कौन तेन रखण वाला। पुराण कहंदा है कि थम पाड़ के नरसिंह दा रूप धारण करके हरनाकश नूं चीर दिता।
मेरी बेनती है, ये जो चीरिया उस बच्चे का भरोसा तो देखो। न्याणा है तो मैं बच्चा शब्द वरत रहा ना, एवं नहीं क्या राम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जपो जैसे। वो तेनू ध्रुव की तरह अपना शरीका बरादरी धक्के भी मारे ते तेनू प्रहलाद की तरह जन्म देने वाले मापे भी विरोध विच हो जाण, कदी रब दा घर ना छड्डी, ओदे भरोसे ते जीवी, तेनू तत्ती वाह नहीं लगण दे। मैं तां कहा भी जिहड़ा शब्द पढ़िया जा रहा सी, इहदे बाबा जी ने चलो एक अर्थे भी कीते विद्वानां ने। अगली गल, गुरु ग्रंथ साहिब तां फेर तो शुरू हुंदा है जी, भरोसे तो। चलो फिर कदी समा मिलिया क्योंकि मैं ये एक शब्द है प्रीत, आप पाठ करो एक गुरु ग्रंथ साहिब शब्द है प्रतीत। प्रीत तां संगत विच बैठिया भी बन जाती कई बारी। मान लो भाई साहब शब्द पढ़ रहे हैं ते बैराग च कोई कथा कर रहे, अपनी अखां च पानी आ गया, ते असीं उठकोरे लैके कहने कि वाहिगुरू जी सतगुरु जी तेरे तो बिना कोई नहीं। ये तो सिर्फ संगत दा औरा सी। बिजनेस च गए, परिवार च गए, कोई घटना ऐसी वापर गई, किसी ने सबजबाज दिखा के कह दिता साडे साडे बाबे कोल साडे कोला, बंदा अगले खेनी ओदे बूहे ते जा डिगे। नहीं प्यारिओ, प्रीत दे नाल प्रतीत मंगो, क्योंकि प्रतीत वालियां दी प्रीत अगे चढ़दी हुंदी है। इसे करके गुरबाणी ने मैं 2-3 बेनतियां कर जांगा। प्रीत है, बाबा फरीद साहब का एक सलोक तुहानूं सब नूं चेते है, गलिए चिक्कड़ दूर घर। एक दिन मैं दे अर्थ ये भी कीते सन, ज्ञानी तुहाडे बैठे सारे, सकत्तर साहब भी सारे, तुसीं ज्ञानवान हो। एक गलियां ने आपां सड़कां ते आए, हुण तां बाई जी मारो सैल्फ ते गड्डी ते मोटरसाइकिल घर आ गई, इत्थे गुरुद्वारे। गुरमुखो ये गलियां तां पार करनियां सौखियां ने, पर जड़ियां आ गलियां ने ना, अखां भी गलियां ने, कन भी गलियां ने, जीव भी गली है, सच्ची मुच्ची मन भी अपने आप विच बड़ी वड्डी गली है। महाराज कहंदे ने तुरना वा ते गलियां च चिक्कड़ है, चिक्कड़ दा काम है रोकना। तुरना मैनू अखां च पराया रूप रोकदा है, कन्नां च निंदिया रोकदी है, जीव दा स्वाद रोकदा है, इंद्री दा स्पर्श रोकदा है। हैन तां सारियां गलियां ही ना, मोरियां ही ने। महाराज कहंदे आ गलियां च चिक्कड़ है, साईं दा घर दूर है, ते लोक लाज दा मींह पैंदे है। किवें करां गलिए चिक्कड़ दूर कर नाल प्यारे, नेहों चलां तां भिजै कंबली, राह तां टुटै नेहों। तुरना ते मैं पहुंच नहीं सकता अगे, यह है प्रीत। नाल प्यारे ने प्रीत है ना। अगला सलोक है प्रतीत, भिजो सिजो कंबली, अल्लाह वर्षै मेहों, जाए मिला तेना सजना, टुटो नाही नेहो, टुटो नाही नेहो, भिजो सिजो कंबली। प्रतीत है। एक शब्द होर, इस भी सब आप चेते है। कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा, हों तिस पै आप विचाई, दर्शन हर देखन कै ताई, कृपा करे तां सतगुरु मिलै, हर हर नाम ध्याई। हुण इह च दोनों जे प्रीत ते प्रतीत, जे सुख देहे, जिहदे कोल सुख मिलेगा बंदा उहनूं नमस्कार करेगा, पर गुरमुखो दुख विच भी उहदी यारी ना छड्डे, स्वाद आ गया प्रतीत दा। जे सुख दे तां तुझा आराधी, दुख पी तुझा ध्याई, जे भुख दे तां इतगी राजा, दुख विच सूख मनाई। ये दुख भी सूख मनाई प्रतीत है, दुख भी सूख मनाई। तन मन काट काट सब अर्पी, विच अग्नि आप जलाई, पखा फेरी पानी ढोवा, जो देवें प्रतीत है, जो देवें सो खाई, नानक गरीब ढह पया द्वारे। आ गए भरोसा, नानक गरीब ढह पया द्वारा, कर मेल लिखो वडियाई। मैं आपने एक बेनती की, गुरु ग्रंथ साहब तर्क तो शुरू होंदा है कि फेज तो होंदा? तर्क है अगे, सोचा सोचना हो भी तर्क है। मेरी बेनती है, जे सोची लखवार तर्क है ना जी, चुप है चुप ना हो भी, जे लाए रहा लिवतार एक लॉजिक है। पर गुरु ग्रंथ साहब शुरू होंदा है एक ओंकार तो, फेत तो वो है। कोई तर्क नहीं दिता भी एक सिद्ध करो किवें है। अगली गल,
जप शुरू हुंदा है। जप तां है ही ब्लाइंड फेथ। आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। कोई कहेगा मैनूं सिद्ध करके दिखाओ जदों कुछ नहीं सी उदों रब सी। नहीं नहीं, धर्म ब्लाइंड फेथ हुंदा है, पर ब्लाइंड उत्ते फेथ नहीं करना चाहिए। फिर बेनती सुनियो, हुण तुसीं कहोगे जी अंधविश्वास। धर्म है ही ब्लाइंड फेथ। आप ब्लाइंड फेथ नहीं। हम अंधले अंध बिखे बिखराते क्यों चालें गुर चाली। सतगुर दया करे सुख दाता हम लावे आपन पाली। मैं अन्ना हाँ, मैं तेरे ते फेथ कीता, मैनूं अपना पल्ला पकड़ा दे। इहनूं ब्लाइंड फेथ नहीं कहंदे, होर की कहने? कि आ ब्लाइंड फेथ नहीं। इत मार्ग चले भाई अड़े गुर कहे सो कार कमाए जियो। त्यागे मन की मतली विसारें दूजा भाओ जियो। गुरमुखो फेरी फिर बेनती है, ब्लाइंड फेथ वाली सिर धड़ दियां बाजियां लांदे आ। कई बारी बेचारे मेरे वर्गे गिनतियां मिनतियां वाले रात नूं भज जांदे हुंदे। भरोसा है ना जी। बाबा जी ने अर्थ कीते, दीन दयाल भरोसे तेरे सब परिवार चढ़ाया बोड़े। ये भरोसे लिए भी गुरमुखो बेनती करिए। हुण जदों कथा हो रही सी ना, ते मैं कहा भी मैं किवें कह सकना मैं भरोसे वाला वां। साडी अरदास दा हिस्सा जिवें वो बोल के गए, भरोसा मैं नहीं क्रिएट करना, तेरे हथ तेरे दर ते झोली अड के आया। मैनू वो भरोसा दे दे जिहड़ा ध्रुव ते प्रहलाद दा सी। भरोसा दात है, भरोसा अपने आप मिलता। सिखां नूं सिੱਖੀ दान, केस दान, असीं सारा पढ़िया, ਰਹਿ दान, विवेक दान, अगे विसाह दान, भरोसा दान। मैं तुहानूं कह देंगा भरोसा करो। गुरमुखो भरोसे तो पहला भरोसा मंगीए, क्योंकि ओदी रहमत तो बिना भरोसा भी नहीं बनता। भरोसा एक दान है, भरोसा एक अरदास का अंग है। हजूर सच्चे पातशाह महाराज कह रहे हैं कि भरोसा, तो मैं सिर्फ इको गल कह के मैनू उस मां गुरमुख की घटना सिर्फ ते भरोसा इन्ना को होवे। बाणी ने उदाहरण दित्तियां ने, उदाहरण चमत्कारी वास्ते नहीं, कमाल ही नहीं। असलोक पढ़ने, स्वामी को गृह जो सदा स्वान तजतनी नित, नानक ए बिदहर भजो एक मन होए एक चेते। भरोसा नहीं। हम कूकर तेरे दरबार भौंके आगे बदन पसार, ये भरोसा है। अब हम चली ठाकुर पे हार, जब हम शरण प्रभु की आई, राख प्रभु भावे मार। लोकन की चतुराई उपमा ते बैसंतर जार, कोई भला कहो भावे बुरा कहो, हम तन दियो है ढार। ये भरोसा दान है। सिख बाणी पढ़ रहे हैं, समाप्ति कर लगा हूं मैं। बाणी पढ़ रहे ने ते एक सरवर दा पुजारी जा रहा है। उन्हें संगत की कोई दिन सिखां दी, कबरां नूं पूजन वाला। उन्हें इन्ना महसूस किया संगत विचों। एक दिन गुरसिख कमाई वाले गुरमुख जिहड़े बैठे, कहंदा सिखो मेरा तां राह ही नहीं सी, मैं तुहाडी संगत कीती। तुहाडे सतगुरु झील ने, तुसीं झील विच वगदे दरिया हो। तुहानूं पता है भी झीलां च भी समुंदर च भी दरिया वगदे ना। तुहाडे सतगुरु समुंदर ने, तुसीं समुंदर च उठे बदल हो, जिथे जांदे हो ठंड पई जांदी है। तुहाडे सतगुरु चंदन ने, तुसीं चंदन कोलों खह के लंघण वाली हवा हो, जिथे जांदे हो नाल चंदन दी सुगंधी लै जांदे। गुरु अर्जुन देव दे सन्मुख हो गया, तुसीं सारे जाणू ना, तो मैं सिर्फ भरोसे दे। उन्हें चरण महाराज दे मत्था टेक दिता, कहंदा आ सिੱਖੀ दिओ जिहड़ी इन्हां कोल है। सतगुरां ने देख के क्या, पुरखा सिੱਖੀ ते सिੱਖੀ नहीं टिकदी, सिੱਖੀ ते सिੱਖੀ नहीं टिकदी। की है नाम तेरा? कहंदा मेरा नाम तीरथा है। कित्थों दा रहण वाला? मंझ की दा, क्योंकि असीं भाई मंझ कहने, असली नाम ते तीरथा सी ना उन्हां दा। मंझ की दा रहण वाला। गुरु जी ने कहा कबरां पूज पूज के अंदर कबर बन गया है। कहंदा मैं कबर नहीं पूजा। कहंदे पिंड दा चौधरी है, चौधर चली जाएगी। कहंदा कोई गल नहीं, माल डंगर अज मालक है, कल नूं सब कुछ जा सकदा है। अज तेरे घर नौकर ने, इस रस्ते ते ना चली, कल नूं तैनूं किसी दा नौकर रहना पै सकदा है। उन्हें क्या महाराज तुसीं बस किरपा करो, मैं बेनती करां। भाई मंझ घर आया, सच ही तुसीं जाणो कबर ढा दी जी, उन्हें आप ही बनाई सीटां ला के। हुण इत्थे क्षमा कर दिओ, इस पिपल दे थल्ले 4 इट्टां रख के ते दीवा बाल के तेल दा, तुसीं अगले साल देखिओ इत्थे लैन लगी होनी। आ धर्म है भारत दा। बाहर असीं चलो रहिने आ जां जाने आ,
ਇੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਟੰਗ ਸਕੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਆ ਮਾਰੇ ਸਿੱਖੀ, ਰੱਬ ਦੀ ਖੇਡ ਦਾਤ ਲੈ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਦੀ। ਘਰ ਗਿਆ, ਪਿੰਡ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਚੌਧਰੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੂੰ ਸਰਵਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੂਜਣਾ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਆਗੂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਚੌਧਰ ਖੋਨੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬਰਾਦਰੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਚੌਧਰ ਦਾ ਛੱਜ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੱਟ ਆਇਆ ਸਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਚੌਧਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਕੋਈ ਬਰਾਦਰੀ ਦੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਦਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਝ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਚੌਧਰ ਗਈ, ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਮਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਘੋੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਮਰੀਆਂ, ਬਲਦ ਉਹਦੇ ਮਰੇ, ਮੱਝਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਮਰੀਆਂ, ਫਸਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਚੌਧਰੀ ਘਾਹ ਖੋਤਰਨ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੋਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦੀ ਤੀਰਥਿਆ ਤੇਰੇ ਤੇ ਸਰਵਰ ਦੀ ਕਰੋਪੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਘਾਹ ਖੋਤਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਮੇਵੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਮੇਵੜੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਮੇਵੜੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਸ ਗਰਾਂ ਜਾ, ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਮੰਝ ਘਾਹ ਖੋਤਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੀਰਥਾ, ਸਾਡਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਦੇ। ਗੱਲ ਮੁਕਾਮਾ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚੌਧਰੀ ਸੀ ਰੁਲ ਗਿਆ, ਘਾਹ ਖੋਤਰ ਦਾ ਪਿਆ। ਭਰੋਸਾ ਗੁਰਮੁਖੋ ਖਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਵਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਟਕੇ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬੰਦੇ ਖਿੰਨ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ। ਸਭ ਕੁਝ ਚਲਾ ਗਿਆ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵੀ। ਉਹ ਜਾ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਭੇਜਿਆ। ਇੱਕੋ ਦਮ ਹੱਥ ਝਾੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਉਦੋਂ ਸਿੱਖ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਤੇਰੇ ਕੋਲ, ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਜੇ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ 20 ਰੁਪਈਏ ਲੈ ਕੇ, ਚਲੋ ਰੁਪਈਏ ਕੋਈ ਘੱਟ ਦੱਸਦਾ ਵੱਧ, ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਘਰ। ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਲਿਖਿਆ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਹੀ ਸੇਠ ਦੇ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ, 20 ਰੁਪਈਏ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ 20 ਰੁਪਈਏ ਦਿੱਤੇ, ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲਿਆ, ਸੰਧਿਆ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਦੀਵੇ ਦੇ ਚਾਲਣੇ, ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਭਾਈ ਮੰਝ ਤੈਨੂੰ ਕਰਤਾਰ ਚੇਤੇ ਆਇਆ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ। ਭਰੋਸਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਕਰਤਾਰ ਚੇਤੇ ਆਇਆ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਭਾਈ ਮੰਝ ਇੱਥੇ ਰੋਇਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੋਇਆ, ਨਾ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਨਾ। ਉਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੋ ਪਿਆ, 20 ਰੁਪਈਏ ਦਿੱਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੇ ਅਥਰੂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ ਤੂੰ ਇੱਕ ਘਾਹ ਖੋਤਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੇ ਅਥਰੂ ਨੇ। ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਕਰਤਾਰ ਚੇਤੇ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਥੋੜਾ ਨੇ। ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਭਾਈ ਮੰਝ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚ ਉਦੋਂ? ਕਿੱਥੇ ਸਿਮਰਨ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਾਂ ਵਰਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਆਇਆ, ਸਿੱਖ ਆਇਆ ਉਹੀ ਲੈ ਕੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਹੁਕਮਨਾਮਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਸੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਐਤਕੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਕਹੇ, ਬਸ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜੇ ਰਾਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਵੇਰੇ, ਜੇ ਸਵੇਰੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਪੜਿਆ ਜੀ, ਦੀਵੇ ਦੇ ਚਾਨਣੇ। ਉਹਦੇ ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਭਾਈ ਮੰਝ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਵੀ ਤੇਰੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਆ ਜਾ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਘੱਟ ਨੇ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਤੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਵੀ ਫੁਰਨਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਖੱਟਿਆ ਕੀ। ਭਾਈ ਮੰਝ ਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਰੋਡ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਭਾਈ ਮੰਝ ਦਾ ਖੂਹ ਹੈ ਜੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪ ਜੀ ਨੇ। ਲੱਕੜਾਂ ਢੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਲੱਕੜਾਂ ਢੋਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੰਗਰ ਚੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਲੰਗਰ ਚ ਆ ਗਿਆ। ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਲਾਂਗਰੀ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਮੰਝ ਆਇਆ ਸੀ, ਲੰਗਰ ਕਿੱਥੋਂ ਛਕਦਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਲੱਕੜਾਂ ਲਿਆਉਂਦਾ ਪਰ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਲੰਗਰ ਪੰਗਤ ਚੋਂ ਛਕਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਜ ਜੇ ਛਕਣ ਆਏਗਾ, ਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਜਦੋਂ ਲੰਗਰ ਛਕ ਲਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨਾ ਆ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਲਿਆਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਛਕ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਲੈਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਢਿੱਲਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਕੂਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਪਰਚੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਜੀ? ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵੀ ਕਮਾਈ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
मैं इसे कर देना समाप्त 2-4 मिनट तुसीं टिका बनाता तां सी जी। उत्थे फिर लंगर छकन आया। जदों लांगरी ने कहा अज महाराज जी आए सन, सतगुरु तेरे बारे पुछदे, खिड़ गया चेड़ा, कहंदा प्रशादा छक लै। छकन तो बाद कहंदा पुछदे सन लंगर कितों छकदा जी? लंगर चों। कहंदे साडा सनेहा दे दिओ, सेवा करना है, मजदूरी करनी, जिन्नियां लकड़ां लिआउणा उन्हां छक जाना। उत्थे फिर भाई साहब फिर तीजी वारी रोया। मैं तुहानूं दसना पड़ां दर पड़ां है। उत्थे कहंदा सतगुरु मैं तेरा किन्ना शुक्र करा, मेरे वर्गा हुंदा ते मैं बंद कर देना सी आउणा। कहंदा सतगुरु चंदन कोलियां दे भाव विकन लगा सी, तुसीं बचा दिता। दूजे दिन लकड़ा लिआउंदा, रस्ते तुहानूं सब नूं पता डिग पिया, शाम दा वेला सी, सारी रात खूज खलोता रहा। अमृत वेले छट्टा मारिया पानी दा, सिर ते पंड। फिर मैं बेनती करां इहनूं इस गल नूं अपने जीवन ते ना टिकाईए, जे मैं नहीं कर सकदा हो नहीं सकदा। उन्होंने कहने अमृत वेले उस बंदे दे जिवें चौथी वार रोया, डडिया उठिया, कहंदा सतगुरु अज मैं नेम निभाण च पिछे रह गया वां। इस वेले आप जी दे सिखां नूं इशनान करांदा सां, पानी गर्म करदा सां। इतिहास कहंदा गुरु अर्जन देव महाराज अमृत वेले ही लोह लग रही सी, उदों कहने लगे रस्सा लियाओ। नगन चरण सतगुरु, कोई घोड़ा नहीं, कोई सवारी नहीं। उथों दौड़े आए, आवाज दिती खूच, कौन? कहंदा मैं गुरु अर्जुन देव दा सिख हां। स्वाद आ गया भरोसे का। कहने लगे आ बाहर पंड थले सट, बाहर तेनू कड्ढण आया। कहंदा ना पंड पहला कड्डो, क्योंकि पंड करके तो मेरा रिश्ता बनया होया है, ये सेवे करके। इतिहास कहंदा है ये पहला ते आखिरी मौका सी गुरु अर्जुन देव सतगुरु नगन चरण आए, रस्सा पकड़ के पहला पंड बाहर कड्डी, भाई मंझ नूं कड्डिया। गुरमुख जदों बाहर निकलिया, पंचम गुरुदेव दे अज नेत्र भिजे होए सन। वो अज सच्ची मुची अगे मंझ दे नेत्र भेजदे सन। अज गुरु अर्जुन देव जी दे इको दम चरना ते डिगदे नूं हजूर ने सीने नाल ला के क्या मंझ तेरी थां अज थल्ले नहीं, तेरी थां मेरे हिरदे विच है। जो मंगेगा, जो मंगोगे झोली च पा दें। गुरमुखो याद रखियो, उन्हां मंगया कि महाराज जी ने कहा जो मंगेगा। गुरमुखो उस दे बैराग च कण पाट गए, मान लो अंदरों वह तुरिया, चरण पकड़ के थल्ले बैठ के कहंदा सतगुरु एक दात दिओ, अज तो बाद मेरे मन विच कदी मंगन दा फुरना ही ना उठे, बस आ दात दे दिओ, दोबारा कदी मंगन दा ख्याल ही ना आवे। सतगुरा ने कहा तू अजाची हो गया। अजाची मीनस तू नहीं मंग रहा, मैं कुछ देना चाहना, कुछ मंग। गुरमुखो अज मैं कहांगा 5वीं 6वीं वार रोया। कहंदा सतगुरु समा कलयुग दा बंदे दे डोलदे पता नहीं लगदा, एडे वड्डे परचे ना पायो सिखां दे। सिखां लई मंगिया, कहंदा एडे वड्डे परचे ना पायो सिखां दे। बंदे डोल सकदे नहीं, पर तेरा थापड़ा होवे। कहंदे सतगुरु जिन्ने सिख खलोते सन सब बिरा विच रो पए। सतगुरां ने पता शब्द की क्या कहन लगे, मंझ भाई मंझ जी तुहानू गुरु के लंगरां नहीं सद्या सी। जी हजूर। कहन लगे तेरी सेवा तो कुर्बान, अज तो बाद तेरे नाल लंगर तोरिया, जिथे तू बैठेगा उत्थे लंगर लग जा। तुसी लंगर लई बुलाए सी, तेरे नाल लंगर तोड़ दिते। अगली गल कही, जेड़ा सिख अपने परिवार विच लिखिया है, भाई साहब पढ़िया होना, जेड़ा सिख तेरी साखी भावना नाल करेगा ओदे परिवार नूं गुरु की सिक्खी मिलेगी। बहुत घट लोग ने कभी उन्होंने पढ़ के देखियो दी साखी, बच्चों को सुना के देखियो। मैं आपको बेनती करा, ये भरोसा कूचा यार में बैठ नक्शे पा की तरह कोई मिटा तो सके पर उठा ना सके।